یہاں کرتے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز اور آپ کو بتائیں فیصل آباد پولیس میں اہم سیٹوں پر تعیناتیاں پھر نظر انداز۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس سی آئی اے کی سیٹوں پر تعیناتی نہ ہو سکی۔ ایس پی انویسٹیگیشن 6 ماہ اور ایس پی سی آئی اے کی سیٹ 2 سال سے تعیناتی کی منتظر۔ ترقی پانے والوں کو 10 سے زائد شہروں میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن تعینات کیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد کی سیٹ کو حالیہ تعیناتیوں میں بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اہم ترین سیٹوں پر تعیناتیاں نہ ہونے سے فیصل آباد پولیس کے امور متاثر ہونے کے خدشات۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد پولیس میں اہم سیٹوں پر تعیناتیاں پھر نظر انداز۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی سی آئی اے کی سیٹوں پر تعیناتی نہ ہو سکیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے طیب مقبول، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی طیب مقبول، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد پولیس میں اہم تعیناتیوں کو دوبارہ سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد کی سیٹ 6 ماہ سے خالی ہے۔ اسی طرح ایس پی سی آئی اے کی سیٹ 2 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود خالی ہے۔ گزشتہ دنوں ڈی ایس پی کو ترقیاں دے کر ایس پی کے عہدے پر پرموٹ بھی کیا گیا اور 10 سے زائد شہروں میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی تعیناتیاں بھی کی گئی، مگر فیصل آباد کو دوبارہ سے نظر انداز کر دیا گیا اور ابھی تک یہاں پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی سی آئی اے کی تعیناتی نہیں کی گئی۔ فیصل آباد پولیس کے امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اہم سیٹوں پر تعیناتیاں نہ ہونے سے شہری بھی انصاف کے حصول کے لیے دفاتر میں خوار ہونے پر مجبور ہیں۔ جی طیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ طیب مقبول آپ کا۔ فیصل آباد کے ضرورت مند افراد کے لیے نگران حکومت کی جانب سے بڑا ریلیف۔ شہر کے 13 پوائنٹس پر آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ مستحق خاندانوں کو آٹے کے مفت تھیلے دیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے نگران حکومت کی جانب سے آٹے کی فراہمی کو حکومت کا احسن اقدام قرار دے دیا۔ پہلے فیز میں ایک خاندان کو 10، دوسرے فیز میں 20 کلو آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامات بہت اچھے ہیں، مہنگائی میں حکومت کی جانب سے غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے پر شکر گزار ہیں۔ فیصل آباد لیگی رہنما طلال چودھری کا بچیانہ میں مفت آٹا پوائنٹ کا دورہ۔ آٹے کی ترسیل کا جائزہ لیا۔ طلال چودھری کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ 10 کروڑ عوام کو مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا کہ لیڈر کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا۔ رانا ثناء اللہ کے کاغذات نامزدگی میری مشاورت سے جمع ہوئے ہیں، ان کا تصدیق کنندہ ہوں۔ جب میں نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے سے انکار کیا تو میری تجویز پر رانا ثناء اللہ کے کاغذات جمع کرائے گئے۔ نون لیگ میں جو نیا آئے گا وہ سینئر کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ طلال چودھری کا مزید کہنا تھا کہ مفت آٹا اسکیم سے پورا پنجاب مستفید ہوگا۔ ادھر سمندری میں بھی مفت آٹے کی تقسیم احسن طریقے سے جاری۔ عوام کی بڑی تعداد اسکیم سے مستفید ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سمندری میں 2 پوائنٹس پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈی ایس پی سمندری ملک شاہد، ایس ایچ او سٹی، ایس ایچ او صدر ترکھانی سمیت 40 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی ایس پی ملک شاہد کا کہنا تھا کہ ہر اہل افراد کو مفت آٹا فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عوامی خدمت اور ڈیوٹی سمجھتے ہوئے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر بوانہ میں بھی مفت آٹے کی تقسیم۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے آٹا حاصل کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور نے اپنی نگرانی میں آٹا تقسیم کروایا۔ ایک سینٹر پر 6000 تھیلے دیے گئے۔ کہتے ہیں سینٹر صبح 6 بجے کام شروع کرتے ہیں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ ایک کارڈ پر دوبارہ 10 دن بعد آٹا ملے گا۔ تحمل کریں، نظم و ضبط کا خیال رکھیں۔ مفت آٹا پوائنٹس رکشہ ڈرائیوروں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن گئے۔ ٹوبہ میں شہری آٹے کی بوریاں رکشے پر لاد کر لے جانے لگے۔ رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اب حالات بہتر ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مفت آٹا کی فراہمی پر جہاں شہری مطمئن دکھائی دیتے ہیں تو وہیں رکشہ ڈرائیورز کی بھی خوشی دیدنی ہے۔ آٹا پوائنٹس پر رکشہ ڈرائیورز کی چاندی ہو گئی۔ شہریوں کے لیے 2 سے 3 تھیلے اٹھانا مشکل ہوا تو وہ موٹر سائیکل رکشہ کا سہارا لینے لگے۔ جہاں پر جو آٹے کا اقدام کیا گیا ہے بہت اچھا ہے۔ ہمارے جو بزرگ لوگ تھے، ہم جیسے بزرگ لوگ تھے، وہ آٹا نہیں اٹھا سکتے تھے۔ باہر آتے ہیں گیٹ کے باہر تو رکشے والے کھڑے ہیں، کم ریٹ پر لے کر ہم کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ صبح آٹا پوائنٹس پر پہنچ جاتے ہیں، سواری بہت زیادہ ہے، البتہ اب تو رکشہ کم پڑ جاتے ہیں، سواری سے مناسب دام وصول کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں کرائے بھی کم کر دیے ہیں۔ مہنگائی کے باعث دہاڑی کی پریشانی تھی، اب آٹا پوائنٹس پر اچھی روزی مل رہی ہے۔ پہلے تو پچھلے روزے آئے تھے ہم ویلے تھے، اب ہماری سواری ٹھیک ہے، روزگار چل رہا ہے۔ یہ 1 مہینہ جو ہے نا بہت اچھا چلے گا، ہم ڈیلی جو ہے نا اچھی دیہڑی بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ جب سے آٹے کا نظام سٹارٹ ہوا ہے نا تو تب سے ہمارے روزگار میں بھی تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، تو چلو
जहां हम काफ़ी देर तक खड़े रहते थे, अब तकरीबन कोई ना कोई कस्टमर मिल ही जाता है, कोई किसी ना किसी जगह बंदा चले ही जाता है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि रोजगार का जरिया मिलने के बाद बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के साथ साथ ईद की खुशियां भी खरीद सकेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, रोबोटिक सिंह। फैसलाबाद में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फल, सब्जियां, अंडे, मुर्गी का गोश्त, हर चीज़ को पर लग गए। माह रमज़ान में महंगाई ने मुतवस्सित तबके को परेशान कर दिया। बढ़ती महंगाई का अजाब शहरियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। ब्रायलर 425 से 465 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर 12 रुपए महंगा 100, अदरक 590, लहसुन 350 फी किलो फरोख्त होने लगा। झंग समेत डिवीजन भर में काश्तकारों की दालों की काश्त में अदम दिलचस्पी। महकमा ज़राअत भी दालों की काश्त में कमी पर कुछ न कर सका। फैसलाबाद डिवीजन में मसूर की काश्त में 52.38% तक कमी आएगी। आपको बताएं, 3 साल गुजर गए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का डाटा ऑनलाइन न किया जा सका। मुतादिद डेडलाइंस के बावजूद ताहाल 100% नताइज हासिल ना किए जा सके। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से 10 अप्रैल की डेडलाइन जारी कर दी। कॉलेजेस के उस्तादिज़ा डाटा 2020 में ऑनलाइन करने का फैसला किया। कॉलेज सरबराहान को डाटा की तस्दीक का टास्क भी दिया गया। मुतादिद कॉलेजेस में उस्तादिज़ा की रिकॉर्ड नामुकम्मल होने के बायस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ताहाल मुकम्मल है। इसी हवाले से हम बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 2020 में असातिज़ा का डाटा ऑनलाइन करने के हवाले से इक़दाम का अमल शुरू किया था। ताहम 3 साल गुजरने को हैं, लेकिन ये डाटा जो है मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन नहीं हो सका। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुतअद्दिद डेडलाइन जारी की गई। ताहम जो है असातिज़ा और जो कॉलेज के सरबराहान हैं उनकी जानिब से इस तमाम तर डेडलाइंस पे अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक बार फिर से 10 अप्रैल की डेडलाइन जारी की गई है। ताहम इस हवाले से भी ताहाल जो है वो स्कूल सरबराहान जो कॉलेज के सरबराहान हैं वो डाटा ऑनलाइन करने के जो तरीकाकार है उससे ही यकसर नावाकिफ हैं। इस सूरत हाल के बायस जो है मुतअद्दिद कॉलेज में असातिज़ा का रिकॉर्ड नामुकम्मल है, जिसके बायस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। जी अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस खान आपका। किसानों के लिए अहम खबर, फैसलाबाद में हालिया बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। ज़राई साइंसदानों ने किसानों को गंदम के खेतों के अतराफ गड्ढे खोदने की हिदायत कर दी ताकि फालतू पानी उधर जमा हो सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें गन्नम के काश्तकारों के हवाले से अहम खबर यह है कि ज़राई माहिरीन का मानना है कि अभी यहाँ पर बारिशों का स्पेल एक और आ रहा है और कल और परसों भी जो बारिशें वो होती रहेंगी। तो इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर काश्तकार इन दिनों में एहतियात करें और ये भी करें कि जो अपनी गंदम के खेत है उसके अतराफ में जो खाली ज़मीन है वहाँ पर 5-5 फीट के गहरे गड्ढे खोद दे ताकि पानी वहाँ पर जमा हो जाए और उस खेत में ना जाने पाए और खेत में जो भी पानी जमा होता है उसको निकाल लिया जाए और जो इर्द गिर्द का पानी है वो खेतों में जाने से रोकने के लिए अतराफ में जब गड्ढे बनाएंगे तो वहाँ पर पानी चला जाएगा उन पॉन्ड्स में और इस तरह से जो गंदम की फसल है मुतासर नहीं होगी। वाज़ेह है कि यहाँ पर बारिशों की वजह से जो गंदम की फसल है 25 से 40% तक मुतासर होगी और इसी तरह से जहाँ पर यालाबारी हुई है वहाँ पर 50% से ज़्यादा जो फसल तबाह हुई है। तो इनको तबाही से बचाने के लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में हालिया बारिशों से गंदम की पैदावार शदीद मुतासर। गंदम की पैदावार 25 से 40% तक ज़ाया होने का खदशा है। आइंदा सीजन मुल्क की ज़रूरियात की गंदम पूरी करना चैलेंज होगा। ज़राई माहिरीन का कहना है कि आलाबारी की वजह से गंदम की फसल ज़्यादा मुतासर हुई है। सीजन ज़राई साइंसदान जमात तनवीर का कहना था कि गंदम के खेतों में पानी खड़ा ना होने दिया जाए, काश्तकार पानी की मुनासिब निकासी का बंदोबस्त करें। एफबीआर हेडक्वार्टर ने टियर 1 कैटेगरी में आने वाले रिटेल स्टोर्स की फहरिस्त जारी कर दी। मुतल्लिका स्टोर्स के पीओएस में रजिस्टर्ड ना होने पर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती शुरू कर दी जाएगी। आपको बताएं, एफबीआर हेडक्वार्टर्स ने टियर 1 कैटेगरी में आने वाले रिटेल स्टोर्स की फहरिस्त जारी कर दी। मुतल्लिका स्टोर्स के पीओएस में रजिस्टर्ड ना होने पर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती शुरू कर दी जाएगी।
FBR हेड क्वार्टर्स टियर 1 कैटेगरी में आने वाले रिटेल स्टोर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। मुतालिका स्टोर्स को POS में रजिस्टर्ड होने की हिदायत, रजिस्टर्ड ना होने पर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती शुरू कर दी जाएगी। FBR मार्च में रजिस्टर्ड होने पर टैक्स एडजस्टमेंट में 30% कटौती होगी। अगले महीने से गैर रजिस्टर्ड के सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में 60% कटौती होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए जितने भी बड़े शॉपिंग स्टोर हैं उनको टियर 1 कैटेगरी में रखा जाता है। फिर उनकी सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम में रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जो कि मरहलावार की जा रही है। और इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में आने वाले मजीद जो बड़े स्टोर्स हैं उनकी डिटेल जारी की गई है। और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को हिदायत जारी की गई है कि उन स्टोर्स को भी POS सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जाए, जबकि उसके साथ साथ मुतलका स्टोर्स के मालिकान को भी हिदायत जारी की गई है कि वो सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम में रजिस्टर्ड हो। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर ना सिर्फ उनके कारोबार सील होंगे, बल्कि इसके साथ साथ उनके जो सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट है उसमें भी मरहलावार 30 से 60% तक कटौती होगी। तो इस हवाले से FBR हुकाम की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि अगर किसी भी किस्म की कार्रवाई से डिपार्टमेंटल स्टोर्स या शॉपिंग पॉइंट्स या चेन स्टोर्स और ब्रांड स्टोर्स बचना चाहते हैं तो FBR के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड हो। और उसके बाद वो अगर खरीदार खरीदारी के लिए आते हैं उनको जो रसीद जारी की जाती है तो वो सिंपल इनवाइस में जारी की जाए, बल्कि POS के बार कोड वाली रसीद जारी की जाए, ताकि उससे वो शहरी इस बात को यकीनी बनाया सके कि आया कि उनका जो अदाशुदा सेल्स टैक्स है वो कौमी खजाने में पहुंच रहा है या नहीं। जी उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएं, बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने से परेशान ज़रूरी सार्फिन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने ट्यूबवेल सार्फिन की बिलों में 10 रोज़ तौसी की हिदायत जारी कर दी। ट्यूबवेल सार्फिन बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तौसी करवा सकेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल बिजली की मुकर्रर तारीख गुजरने से परेशान ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी की गई हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के बिजली के बिलों में 10 रोज़ तक की जो तोसी है वो की जाए, और ताकि मुकर्रर तारीख गुजरने पर लाखों रुपये जुर्मानों से जो है वो ज़रूरी कनेक्शन सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वो तमाम तर ट्यूबवेल कनेक्शन जिनकी तादाद फेस्को में 53,000 के करीब है, अगर उनके बिजली के बिल ताहाल जमा नहीं हुए और बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख गुजर चुकी है तो अपने मुतल्लिका सर्कल दफातर से बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी करवा कर अपने बिजली के बिल बगैर जुर्मानों के जो है वो अदा कर सकते हैं। 10 रोज़ से ज़्यादा फेस्को की जानिब से जो है वो बिजली के बिल में जो है वो तोसी नहीं की जाएगी। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि रिकवरियों के हवाले से भी तमाम तरह ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक किया गया है, और इसके साथ साथ 2 माह के बिजली के बिलों की एक साथ की सहूलत भी दी जा रही है। रिकॉर्ड याफ्ता बिजली के बिलों में सार्फिन को जो है वो एक साथ की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। इस हवाले से ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन जो है वो वैसे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वैसे आपका।